Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is From the Footprint, Chapter 20, Understanding Democracy. The big idea. At the end of this lesson, learners will be able to define democracy, assess the importance of democracy, trace a brief history of democracy, explain the significance of the key feature of democracy, decision-making mechanism, equality, justice, and human dignity. Discuss the program initiated by the government of India also. New maker. Callisthenes of Athens is regarded as the father of Athenian democracy by historians. Athenian democracy, ancient Greek civilization, is the oldest form of democracy in the world. Callisthenes is credited with strengthening the position of citizen, vice the nobility who controlled power of ancient Greece. तो क्लेथेनिस ऑफ एथेंस रिगार्ड होते हैं फादर ऑफ एथेंस डेमोक्रेसी के हिस्टोरियंस के थ्रू. एशियन डेमोक्रेसी जो एशियन ग्रीक सिविलाइजेशन है वो ओल्डेस्ट फॉर्म है डेमोक्रेसी का वर्ल्ड में. और जो क्लेथेनिस है उनको क्रेडिट मिलता है इस चीज को स्ट्रेंथ करने का और नोबेलिटी को आगे बढ़ाने का जिन्होंने कंट्रोल करी थी एंशियंट ग्रीस को. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल गवर्न देमसेल्फ डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. डेमोक्रेसी एक तरह की वो गवर्नमेंट है जिसमें लोग खुद गवर्न करते हैं या तो डायरेक्टली या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. प्रिविलेंट इन एंशियंट ग्रीस. क्या क्या प्रिविलेंस थे एशियन ग्रीस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी में. फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या आया, डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दीज इवेंट्स इन हिस्ट्री. Renaissance, Glorious Revolution England, American War of Independence, French Revolution, the World War, Russian Revolution. Key features of democracy. Decision-making mechanism that work for the welfare of the people and interest of the nation. Elected through political means. Universal adult franchise. Equality, socio-economic, justice for everyone, consideration for human dignity, constitutional provision and the programs and policies. India is one of the largest democracy in the world. Or freedom fighters fought and sacrificed their lives to gain independence from British rule. After independence, India chose to be a democratic republic. Our leaders framed a constitution and our country is governed by its law. तो हमारी इंडिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. इंडिया में जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने लड़ाई करी और सेक्रीफाइस कर दी अपनी जान इंडिया की इंडिपेंडेंस पाने के लिए ब्रिटिश से. जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल गई तो इंडिया ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को चूज किया और जितने भी लीडर्स थे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करा जिससे इंडिया या वहां की कंट्री गवर्न कर पाए अपने लॉ. व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है. In today's world, democracy is considered to be the best and the most popular form of government. आज पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को कंसिडर किया जाता है बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर फॉर्म गवर्नमेंट की है. Democracy is a form of government where the people govern themselves directly
और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी एक तरह की वो गवर्नमेंट है जिसमें लोग या तो खुद अपने आप को गवर्न करते हैं डायरेक्टली, या वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं ताकि वो गवर्न कर पाए। देयर आर टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की दो फॉर्म है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, in this, people directly participate in the process of governance, are free to vote, to make law, elect or dismiss official, and conduct trial themselves. Ancient Greece had a form of direct democracy. तो एशियन ग्रीस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी की फॉर्म होती थी। इसके अंदर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे, लॉ बनाते थे, वोट करते थे, इलेक्ट करते थे और डिसमिस भी करते थे, ट्रायल्स करते थे अपने आप। Indirect democracy, in this, people elect their representative who take decisions on their behalf. This is also known as representative democracy. लाइक सपोज करो आपके क्लास में वोटिंग हुई मॉनिटर के लिए और आपने मॉनिटर को वोट करा, तो ये जो वोटिंग प्रोसेस होगा, जो आप एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करेंगे क्लास में अपने बिहाफ पर बोलने के लिए, वो बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रिवेलेंट इन इंडिया, यूएसए एंड फ्रांस। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ है? इंडिया में, यूएसए में और फ्रांस में। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? द वर्ड डेमोक्रेसी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, which is a combination of two words. Demos means people and krato means rule या power. तो लोगों की जो पावर है उसी को हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। द एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि कैसे डेमोक्रेसी की घटना घटी। In this session, we will revisit the historic events that led the evolution of democracy in its present form. तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे हिस्टोरिक इवेंट्स और इवोल्यूशन के कारण डेमोक्रेसी आज इस प्रेजेंट फॉर्म में है। एंशियंट ग्रीस, जैसे आपको बताया गया था कि एशियन ग्रीस में सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी थी। द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी बिगिंस इन एथेंस इन एशियन ग्रीस इन द 6th सेंचुरी BCE। तो जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी एथेंस में 6th सेंचुरी BCE में। इन दिस एशियन फॉर्म इट वॉज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इस एशियन फॉर्म को बोला गया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी, wherein all citizens assembled at one place to make law and take decision regarding day-to-day matters of governance। जहां पे क्या होता था कि लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, वोट करते थे, डे टू डे अपने मैटर्स सॉल्व करते थे और फिर अपने घर चले जाते थे। तो इट मींस व्हाट, कि पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे प्रोसेस, गवर्नेंस के प्रोसेस में। medieval period, in the medieval period, several European rulers, while making policies, consulted church officials and various group of citizens, which led to the formation of representative bodies of citizens। तो पुराने जमाने में क्या होता था, जो यूरोपियन रूलर्स थे वो जब पॉलिसीज बनाते थे तो वो चर्च के ऑफिशियल से और सिटीजन्स के ग्रुप से कंसल्ट करते थे, और इसी ने फॉर्मेशन करी किसकी? रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सिटीजन्स की। While the decline of feudalism in Europe in the 14th century, power shifted from the feudal lords to the king and the common people। तो feudalism क्या है? बेसिकली सामंतवाद, जिसके अंदर क्या होता था कि ऐसी व्यवस्था होती थी जिसमें राजा के नीचे कुछ लोग काम करते थे। तो जब यूरोप में 14th सेंचुरी में ये डिक्लाइन हुई, तो जो राजा थे और राजा की भागदौड़ थी
वो कहाँ पे शिफ्ट हो गई, कॉमन पीपल पे शिफ्ट हो गई. द राइज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो शिफ्टेड पावर अवे फ्रॉम द फ्यूडलिज्म लॉर्ड एंड लेड द फाउंडेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. और फिर क्या हुआ कि जो राइज था नेशनलिज्म का कि हमारी कंट्री अच्छी है, ये वाली भी पावर शिफ्ट हो गई किंग से कहां पर, और उसने क्या फाउंडेशन क्या बन गई, ये डेमोक्रेसी की एक तरह की फाउंडेशन बन गई. रेनॉन्स इन यूरोप, रिवाइवल, रीबर्थ. The Renaissance movement in Europe witnessed the rebirth of art, literature, science and philosophy. तो जो रेनॉन्स मूवमेंट हुआ था यूरोप ने, उसने क्या रीबर्थ कर दिया, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और फिलोसफीज को. The Renaissance humanists revived Greek literature and culture, which led to the growth and implementation of the concept of democracy. तो जब Renaissance humanist हुआ तो उसने ग्रीक लिटरेचर और कल्चर को रिवाइव कर दिया, जिसने क्या ग्रोथ करी और इंप्लीमेंट करा, कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का. Legislative bodies came into being, which were composed of representatives from both aristocratic and non-aristocratic families. जो लेजिस्लेटिव बॉडीज थी, जो लॉज बनाती थी, लॉज को इम्प्लीमेंट्स करती थी, वो फोर्स में आ गई. और जितने भी एक हाथ में जो सत्ता थी और नहीं सत्ता थी, उससे वो क्या होने लग गई, आगे बढ़ने लग गई. इन इंग्लैंड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 फर्दर स्ट्रेंथ द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी. जब इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ 1688 में, तो उसने डेमोक्रेसी की जड़ों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया. The revolution gave a blow to the absolute rule of the British king and made the ruler answerable to the parliament, the representative body of the English people. तो इस रेवोल्यूशन ने क्या करा, हवा दी, और जो ब्रिटिश किंग्स थे और जो रूलर्स थे वो आंसरेबल हो गए थे पार्लियामेंट्स को, जो क्या थी, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी इंग्लिश लोगों की. द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि कैसे अमेरिकन वॉर ने इंडिपेंडेंस को हवा दी. अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ensued between British colonies in America and Britain in 1775. तो जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो किस किस के बीच हो गई, ब्रिटिश कॉलोनीज अमेरिका में और ब्रिटेन में 1775 में. Also known as the American Revolutionary War, it marked the end of British imperialism in America. तो क्या हुआ कि जो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसने ब्रिटिश के इम्पेरियलिज्म को खत्म कर दिया अमेरिका में. सक्सेस ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ independence ushered in the idea of the written constitution in the form of the American Constitution that was enforced in 1789. और जब ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो एक आइडिया आया था किस चीज का, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म का, जिसने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स लागू कर दिया 1789 में. A Bill of Rights was included in the Constitution that granted base rights of citizen. एक Bill of Rights जो था कॉन्स्टिट्यूशन में पारित किया गया, बनाया गया, और उसमें क्या था, राइट्स टू सिटीजन्स. The basic rights could not be violated even by the government. The citizens were entitled to the basic rights during the course of judicial proceedings as well. तो जो उनको जो राइट्स दिए गए थे उनको वॉलेट नहीं किया जाना चाहिए था गवर्नमेंट के थ्रू. मतलब गवर्नमेंट भी वो राइट्स नहीं ले सकती है सिटीजन से, और जब भी अगर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी तो उसमें उनको बेसिक राइट्स दिए जाएंगे.
The French Revolution. The French Revolution of 1789 dealt a death blow to the divine right of the king and brought in the idea of liberty, equality and fraternity. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसने जो राजा की पावर थी उसको खत्म कर दिया और क्या क्या लेकर आई, वो आइडिया लाई लिबर्टी का, स्वतंत्रता का, इक्वालिटी का, कि सब लोग एक समान हैं, और फ्रेटर्निटी का, भाईचारे का, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड of the citizen declared that an individual is born free and upheld the universe and nature's right of humans. तो इसमें क्या बोला गया कि सारे के सारे लोग क्या हैं, फ्री हैं और उनको हक है ह्यूमन राइट्स का. It also led to the abolishment of slavery in 1794 in the French colonies. और जो फ्रेंच कॉलोनीज में लोगों को कैदी नहीं, बेसिकली स्लेव्स बनाया जाता था, उसको भी अबॉलिश करा, खत्म करा. द वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन, कि कैसे वर्ल्ड वॉर हुई और रशियन रेवोल्यूशन हुआ. The First World War was 1914 till 1918, led to the dissolution of major European imperial powers. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके अंदर जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी वो क्या हो गई, खत्म. New nation states were created where the governments adopted the principle of democracy to govern their countries. तो अब जब नए नए नेशन क्रिएट हुए तो जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी थी वो बहुत सारे कंट्रीज ने अपना ली. The Russian Revolution of 1917 made it clear that political equality is incomplete without social and economic equality. और जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, उसमें ये क्लियर हो गया कि पॉलिटिकल इक्वालिटी इनकम्प्लीट है जब तक सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आती. The revolution successfully destroyed the prevalent autocratic government and led to the formation of the Soviet Union. The Union of the Soviet Socialist Republic was dissolved in 1991, and most countries which separated from the Union choose a democratic government. तो जब revolution successfully destroyed हो गया तो prevalent जो autocratic government थी वो भी खत्म हो गई और इसी ने सोवियत यूनियन की फॉर्मेशन करी, जिसके अंदर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक डिसॉल्व हो गई 1991 में और बहुत सारी कंट्री सेपरेट हो गई यूनियन से और उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चूज किया. In 1939, the world witnessed the Second World War. 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी. After the Second World War, most colonies become independent and choose to become a democracy. जितने भी ब्रिटिश के अधीन लोग थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित किया था और उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेसी को चूज किया. Some key elements of democracy through the ages. Renaissance popularized the idea of representative taking decision for the people. एक पॉपुलर आइडिया रिप्रेजेंटेटिव का कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेगा. American War of Independence popularized the idea of right for citizens and their protection from the government. तो अमेरिकन वॉर इंडिपेंडेंस की पॉपुलराइजेशन क्यों हुई थी, क्योंकि उसने सिटीजन्स के आइडियाज को और उनको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट से पॉपुलराइज्ड हुआ था. फ्रेंच रेवोल्यूशन पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आइडियाज है इक्वालिटी का, लिबर्टी का और फ्रेटर्निटी का पॉपुलर हुआ था. रशियन रेवोल्यूशन popularize the idea of equality कि सब लोग इक्वल हैं, सब लोग फ्री हैं, कोई भी गुलाम नहीं है. पॉलिटिकल साइंस इन डेप्थ, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि कैसे होती है अलग अलग गवर्नमेंट की फॉर्म्स.
Dictatorship. The power to the ruler rests with one person or a small group of persons who have absolute power without effective constitutional limitation. Such power is often obtained forcibly. People do not enjoy any freedom. तो डिक्टेटरशिप में सिर्फ एक राजा होता है जिस जो अपना निर्णय न्याय सब सुना देता है और उसमें जनता का कोई भी महत्व नहीं होता. मोनार्ची, इसके अंदर क्या होता है कि जो पावर्स होती हैं वो राजा और रानी के पास होती है और वही सारी पावर्स को मेंटेन करते हैं. डेमोक्रेसी, the power is either held by elected representative or directly by the people themselves. ये पावर्स क्या होती है, इसमें पावर्स जो होती है या तो इलेक्टेड पर्सन्स के पास होती है या लोगों के पास खुद होती है. Why democracy? अब डेमोक्रेसी क्यों? Today, democracy as a form of government is being followed in many countries around the world. It has gained distinct popularity due to the following principles that is embodies. तो आज डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो होती है और उसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी को गेन कर लिया है. Citizen elect representative to form a government. The right to choose the representative lies with the people. जो सिटीजन्स हैं वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को ताकि गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए और उनके पास राइट होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का. सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव on the basis of universal adult franchise. All adult citizens have the right to vote. तो जिन जिन लोगों के पास वोटिंग का अधिकार होता है वो वोट करते हैं. वैसे तो 60 प्रायर में 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में जो वोटिंग राइट्स थे वो 21 इयर्स के लोग करते थे, लेकिन फिर अमेंडमेंट हुआ और 18 इयर्स के लोग वोट करने लगे. Citizens have right to change or remove the government. This prevents the government from acting in a dictatorial manner. तो क्या होता है कि जब हमें पता होता है कि हम सत्ता से हट जाएंगे या हमारी सत्ता छिन जाएगी तो हम काम अच्छे करते हैं, बुरे नहीं करते. तो ऐसे ही सिटीजन्स के पास राइट था कि अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो उसको हटा सकते हैं. इलेक्शंस आर हेल्ड एट पीरियोडिक इंटरवल. इलेक्शंस जितने भी हैं वो पीरियोडिक इंटरवल पे हेल्ड होते हैं. This ensures that the government is accountable to the citizen because it knows it can change after a few years. और गवर्नमेंट जो लोग हैं उनको जवाबदेही है क्योंकि वो जानती है कि कुछ सालों बाद चेंज हो सकते हैं. Equality and justice are ensured to all the citizens of the country. जो एक समानता है और जस्टिस है वो सारों के लिए बराबर है, ये डेमोक्रेसी ने बताया. Citizens can use various platforms to voice their opinion. Freedom of speech and public opinion ensure regular participation of the citizen in the political process. और अपनी वॉइस या अपने ओपिनियन को देना, फ्रीडम ऑफ स्पीच और पब्लिक ओपिनियंस को रेगुलर पार्टिसिपेट करना और पॉलिटिकल प्रोसेस में काम करना डेमोक्रेसी के फीचर्स थे. Thus, citizens play a significant role in the social and political process of the democratic nation. इसलिए significant role social और political democratic nation में citizens ने किया. Key features of democracy कि क्या की फीचर है डेमोक्रेसी की. The key feature that enable the effective implementation of the democratic process are discussed below. वो डिस्कस किया गया है नीचे. Decision making mechanism. In India, various organs of the government help in ruling the government machinery. The objective of ensuring the citizen
welfare and safeguarding the interest of the nation imbue these organs of the state. The three organs are, तो ये इसमें थ्री ऑर्गन्स आए. फर्स्ट है आपका लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकिंग बॉडी, जो कानून बनाता है, दैट इज लेजिस्लेचर बॉडी. लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है. इसके अंदर दो हाउसेस आते हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा जो है आपका, ऑफन पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड मेक लॉ. तो लोग अपना चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव और लॉ बनाते हैं. एंड द राज्यसभा शेयर लेजिस्लेटिव पावर्स विद लोकसभा. जो राज्यसभा है वो लेजिस्लेटिव कानून बनाने की पावर्स लोकसभा से शेयर करती है. एग्जीक्यूटिव्स. द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स लॉ एंड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग. जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉ, जो कानून बन गए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, उनको क्या करता है, इम्प्लीमेंट कराता है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में. The president is the head of executive of the Union of India and she appoints the prime minister. जो president है वो head होता है executive यूनियन ऑफ इंडिया का और वही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विंस द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन द जनरल इलेक्शन. और जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन होता है, लीडर होता है पार्टी का जिसने मेजॉरिटी से वोट्स को जीता है. He she works along with a team of ministers who are elected by the people and are answerable to them. और वो उन मिनिस्टर्स के साथ काम करता है जिनको लोगों ने जिताया है. जुडिशरी. द जुडिशरी इज द थर्ड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट. जुडिशरी थर्ड ब्रांच है गवर्नमेंट की. इट एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. इट हैज द पावर टू डिक्लेयर लॉ passed by the legislature as illegal if such law violate the spirit of the constitution. The judiciary is free from the control of the legislature and executive. तो जुडिशरी जो होते हैं लॉ को लागू करने में अगर दिक्कत आती है या कोई उल्लंघन करता है तो उसको क्या करता है, सॉल्व करता है या सजा देता है. और जुडिशरी फ्री होता है कंट्रोल लेजिस्लेचर के और एग्जीक्यूटिव के. Equality. In the political sphere, democracy is based on the principle of universal adult franchise, which means that irrespective of educational qualification, caste, color, creed, region, or religion, all citizens above the age of 18 have the right to vote. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि चाहे बेशक सिटीजन किसी भी क्वालिफिकेशन का हो, कास्ट का हो, कलर का हो, रीजन का हो, रिलीजन का हो, सारे सिटीजन्स जिनके भी एज 18 अबव है उनको राइट टू वोट है. The Constitution of India does not discriminate against any Indian, irrespective of the gender, caste, religion, tribe, education, background or economic status of the person. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो किसी से भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता इसके लिए कि वो किस तरह का है, कि क्या जेंडर है, कास्ट है, रिलीजन है, ट्राइब है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है या उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है. Equality is also advocated in economic and social sphere. Equality जो है वो भी इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर में इम्पोर्टेंट है. Every citizen has the freedom to choose and practice an occupation of his her choice. हर सिटीजन को फ्रीडम है कि वो अपनी प्रैक्टिस या अपना ऑक्यूपेशन अपने आप चूज कर सके, उसकी खुद की चॉइस हो. Any kind of social discrimination such as untouchability is considered to be the violation of the Constitution of India and is punishable by law. तो जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में.
Access to public places such as market, playground, roads or wells is not denied to any person in the country. कि अगर पब्लिक प्लेसेस में कोई जाना चाहता है, मार्केट में कोई जाना चाहता है, प्लेग्राउंड में कोई खेलना चाहता है या रोड्स वेल्स पे कुछ करना चाहता है, तो उसको डिनाई नहीं करेंगे। उसको यूज करने से आप किसी भी इंसान को मना नहीं कर सकते। In addition to the constitutional provision, the Government of India has also started a number of policies and programs to ensure effective democratic functioning. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को और बढ़ाने के लिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को चालू करा है ताकि वो इफेक्टिव डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कर पाए। Special policies have been framed to secure better opportunities for the deprived section of the society. जो भी ये सारी policies हैं, वो betterment के लिए की गई हैं। These policy includes the following: reservation for the scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes in educational institution and the government job. तो reservations हुई हैं scheduled caste के लिए, scheduled tribes के लिए, और जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनमें उनकी, ताकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट जॉब में आ पाए। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कम कीमतों पे घरों को उपलब्ध करवाने की स्कीम स्टार्ट हुई। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द वुमेन इन द पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप देखते हैं लिखा होता है महिलाओं के लिए रिजर्व सीट्स। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन विलेज पंचायत, विलेज पंचायत में भी वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व की गई। लिटरेसी स्कीम टू एनकरेज एजुकेशन अमंग्स इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शंस, तो और जो एजुकेशन को कि बच्चों को भेजे स्कूल, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स चलाई गई। Development schemes for the rural area, provision of midday meal or cooked lunch in all government elementary schools. और मिड डे मील्स हमने सुना है जनरली सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में चलाए गए ताकि सब बच्चे आए और खाना भी खाएं और अपनी एजुकेशन को भी वो पूरा करें। जस्टिस, न्याय, the judiciary play an important role in the implementation of democracy. It protects the freedom and right of the people of a democratic country. All citizens are equal in the eye of the law. Every citizen has the right to seek and receive justice. तो जुडिशरी जो होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इम्प्लीमेंट करने में डेमोक्रेसी को। वो प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम और राइट्स लोगों के डेमोक्रेटिक कंट्री के, और जितने भी सिटीजन्स हैं वो कानून की नजर में समान हैं और हर एक सिटीजन को राइट है कि वो रिसीव कर पाए और ले पाए जस्टिस। ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन रिस्पेक्ट, डिग्निटी रेफर्स to the recognition of the fact that a human being is worthy of respect. Democracy stands on the foundation of human dignity. There is respect for equality and justice for everyone, irrespective of his her status or achievement. Everyone enjoys the fundamental rights granted by the Constitution, and no one is allowed to violate the right of others. डिग्निटी का मतलब कि रिस्पेक्ट, और जो डेमोक्रेसी है उसकी फाउंडेशन क्या है? ह्यूमन डिग्निटी। उसकी रिस्पेक्ट और इक्वालिटी, जस्टिस हर किसी के लिए बराबर है। एवरीवन एंजॉयज द फंडामेंटल राइट्स, हर कोई एंजॉय करता है अपना फंडामेंटल राइट गारंटेड जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन से, और कोई भी उनको वॉलेट नहीं कर सकता उस राइट्स को। The principle and the key element of democracy promote human values and form the basis of a just society.
तो जो प्रिंसिपल और की एलिमेंट है डेमोक्रेसी का वो क्या है, प्रमोट करना ह्यूमन की वैल्यूज को. दीज प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स रैंक डेमोक्रेसी अबव एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और इन्हीं प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स ने डेमोक्रेसी को रैंक अप किया है. The provision made by the legal system and the constitution and the special scheme launched by the government help in promoting equality of opportunity and in releasing the spirit of democracy. तो जितनी भी ये स्कीम्स आई हैं, लीगल सिस्टम्स हैं, स्पेशल स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उन्होंने प्रमोट करा है इक्वालिटी को, और ये उन्होंने ही स्पिरिट डाला है डेमोक्रेसी में. Participation and cooperation of the people and recognition of the value of democracy is an necessary condition for the success of these welfare policies and programs. जो participation और cooperation हुआ है लोगों का इस democracy में, उसी ने welfare policies और program को success किया है. If you like the way as I'm teaching, so like and subscribe my YouTube channel, Education for Kids. Thank you so much.